नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेपी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। और हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और नेशन नाउ की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। Chinese में ni hao, Japanese में konnichiwa, and of course bonsoir in French. Pradeep ji, please. Avariyako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. I love the way he says that. Could you say that again in Swahili, please? I really want to hear it. Could you say Avariyako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Fantastic, absolutely fantastic. Now, the point is, Pradeep, what's going on over here? I mean, what is really going on as far as the Congress is concerned? The Congress seems to have given up everywhere. I mean, what are they doing? सर, मोदी जी ने जब जैसे कहा कि आपके डबल हैट्रिक ऑफ जीरोस इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि लोगों के दिल से आप निकल गए. द पीपल नो लॉन्गर हैव द फेथ इन द ओल्ड कांग्रेस द वे एट द टाइम ऑफ इंदिरा जी, राजीव जी. तो दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, स्पेशली दिल्ली तो गढ़ था. It was where the Congress really did wonders at some point of time. Today to be totally wiped out. So that for the third time, प्रदीप जी, तीसरी बार. और wiped out in the sense that 0-0-0. और बड़ी वाहियात बात क्या है मेरे खुद के लिए, मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा सब कांग्रेस, हमारी दादी सब लोग जेल गए. वेलकम आंदोलन में. यस. और आज की तारीख में तीसरी मर्तबा आपको सिफर मिला है. जीरो सीट्स. और दौर छोड़िए और आप खुशियां मना रहे हैं. कांग्रेस के ऑफिस के बाहर लोग भंगड़ा कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल हार गया. अरविंद केजरीवाल के हारने पे कांग्रेस खुशी मना रही है. ये क्या है सर? बट इफ यू सी द एंटायर इंडिया अलायंस के लोग एक तरफ है एंड कांग्रेस एक तरफ है जी. यू हैड Akhilesh Yadav very close to Rahul Gandhi but he was supporting Aam Aadmi Party. Uddhav Thackeray very close but supporting Aam Aadmi Party. Trinamool Congress also lent there. Omar Abdullah lent support. Yes. तो जितने alliance है, India alliance के partners थे, they all actually supported Kejriwal. And probably Congress इसलिए शायद celebrate कर रहे हैं. पूरे alliance एक तरफ, फिर भी आप जीत नहीं पाए. तो consolation. जी. At the moment with us we have are all the guests with us right now or are we waiting for someone? Can we go to our guest please? Yeah. Oh, Ali Darwala sahab, how are you sir? Good evening Pradeep ji, good evening Rajiv sir. Namaskar good evening sir, to namaskar. our panelists. Jai Hind, Jai Maharashtra, Vande Mataram. हर हर महादेव सर. हर हर महादेव, हिंदू राष्ट्र. हर हर महादेव सर. RSS अरे दारूवाला साहब की शक्ल पे जो आज खुशी है, हाय 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 सर. इतनी खुशी लेकर के कहाँ जाओगे? डबल इंजेक्शन बीजेपी और RSS. दारूवाला साहब दोनों कैप्सूल खाए. कभी कभी नेशन नाउ के दफ्तर में लड्डू तो भिजवा दिया करो. Sir, you will be surprised. I was just speaking to one of our very senior people in the Sangh, and I said when we are flying out of Bombay, means we normally fly out of Pune. I said we will fly out of Bombay. We will do a live show in your studio. Fantastic. With our very senior functionary. The name I will disclose once they confirm, and then we'll head to Delhi. And Wow. he has agreed to do this, Rajiv sir and Pradeep sir. Fantastic. अब I don't think I'm permitted to recite the RSS anthem here. That will be a breach of protocol. Namaste Sada Vatsale वगैरह वगैरह. I don't think I can do that. द्विवेदी जी will protest. द्विवेदी जी नमस्कार. जय श्री राम. जय सिया राम सर. जय सिया राम. हर हर महादेव. अरे द्विवेदी जी ये क्या हो रहा है? हर हर महादेव. ये क्या हो रहा है द्विवेदी जी? दिल्ली अब कांग्रेस कहाँ हार गई सर. दिल्ली भी हार गई, हरियाणा भी हार गई, मध्य प्रदेश भी हार गई, महाराष्ट्र भी हार गई. अब क्या है मतलब मेरी समझ के बाहर है. क्या कर रहे हैं लोग? लोकसभा चुनाव में इतनी बढ़िया तरीके से इंडिया अलायंस जीती
और अब देखिए क्या हाल हो गया सर। मतलब 4 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत करी, बहुत क्लियर हो गया ना कि अगर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो बीजेपी जीतती है। जहां आरएसएस ने अपना हाथ पीछे कर लिया, बीजेपी खत्म। क्या बोलते हैं संजय द्विवेदी जी? देखिए सर, ये मैं आरएसएस की बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उसका जब चुनाव हुआ जिसमें अडवाणी जी को बनाया गया था, तब भी आरएसएस साथ थी जी थी। लेकिन 2004 में कांग्रेस सरकार बन गई, 2009 में भी कांग्रेस सरकार बन गई। देखिए बात इसकी नहीं है, बात अभी आपने प्रस्तावना में बड़ी अच्छी बात प्रदीप जी कह रहे थे कि उमर अब्दुल्ला भी साथ थे, उद्धव ठाकरे भी साथ थे, समाजवादी पार्टी मानी अखिलेश यादव भी साथ थे, सभी साथ होकर आपको चुनाव लड़वा रहे थे। लेकिन अभी आपने कही कि इनके ऑफिस के सामने जो है फुलझड़ियां चल रही है, खुशी मनाई जा रही है। ठीक है, 27 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज आप देखने को आपको मिली होगी कि अगर आप गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे हैं, गठबंधन नहीं करना चाह रहे हैं और गठबंधन से आगे नहीं बढ़ने जा रहे हैं, तो जीरो क्या और जीरो मिलते रहेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को आज विचार विमर्श करने की जरूरत है कि अगर हमने गठबंधन से 101 सीटें आपको मिल गई लोकसभा में, चुनाव में आपको प्रतिपक्ष के नेता नहीं बना रहे थे, लेकिन गठबंधन की बदौलत आज आप प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी के बने हुए हैं। अगर गठबंधन ना किया होता तो क्या प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बन पाते? नहीं बन पाते। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने आज से 30-32 साल पहले जो विचार किया था, तब गठबंधन सरकार गठबंधन की चलती है। माननीय सोनिया गांधी ने भी 2009 में जब इनकी जीते सांसद, तो उन्होंने गठबंधन का धर्म निभाया और उसकी संयोजक बनी, वो संयोजक बन के उन्होंने 5 साल सरकार चलाई। तो क्या राहुल गांधी या उनकी पार्टी के जो स्टेट वाइज प्रेसिडेंट है, चाहे महाराष्ट्र के हो चाहे हरियाणा को, आप महाराष्ट्र का भी देख लीजिए, मुख्यमंत्री नाना पटोले जी चिल्ला रहे थे मुख्यमंत्री हम बने, कांग्रेस को बनेगा। तो पहले चुनाव तो जीतिए ना, आवाज आ रही है, कैमरा नहीं, जीतने की बात तय करिए ना, चुनाव जीतने की बात तय करिए ना। बट दिल्ली में क्या द्विवेदी जी, जब पूरा गठबंधन आपको समर्थन कर रहा है तो आपको भी विचार विमर्श करना चाहिए था। द्विवेदी जी दिल्ली भी गए, द्विवेदी जी दिल्ली भी गए, मगर मिल्कीपुर जिस प्रकार से गए, एक बहुत बड़ा धक्का इसलिए है बिकॉज उद्धव ठाकरे जी ने आलोचना डेफिनेटली किया है कांग्रेस का, अखिलेश, बट मिल्कीपुर जो अयोध्या यानी फैजाबाद आपके साथ अवधेश प्रसाद जी ने इस सीट को वेकेट करके जीता है लोकसभा, और उसी मिल्कीपुर आप हार गए जो अवधेश प्रसाद जी खुद वहां पर थे। तो ये डबल धक्का है, ये डबल धक्का है बिकॉज कुछ ही महीने पहले आप जीते हुए पूरे लोकसभा और मिल्कीपुर आप हार जाते हैं, और एक जबरदस्त मार्जिन से आप हारे हैं। द्विवेदी जी, मैं आपको हारे मीन्स आप गठबंधन के अहम हिस्सा है और आप जानकारी रखते हैं पूरे फैजाबाद, अयोध्या और मिल्कीपुर का। तो क्या हुआ वहां पर द्विवेदी साहब, क्या हुआ? देखिए मैं अच्छी बताता हूँ प्रदीप जी, बजाज जी, चुनाव एक गणित होती है सर। अब आप निश्चित मान लीजिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे हरियाणा हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गणित सेट की या जो उन्होंने जिस तरह चुनाव लड़ा, जीत का जो परिणाम उनके पास आया। अब आप इंडिया गठबंधन देख लीजिए, महाविकास अघाड़ी देख लीजिए, हमने जिस तरह से चुनाव लड़ा कि दिल्ली में कांग्रेस अलग। भाई देखिए मैं एक बात कहता हूं, जहां आपके परसेंटेज वोटर परसेंटेज कम हो या जहां आपके वोटर परसेंटेज 40 से ऊपर, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे हरियाणा देख लीजिए, तो वहां कम से कम अगर गठबंधन का एक समीकरण चल रहा है तो गठबंधन का धर्म आपको निभाना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि हम हरियाणा में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या समाजवादी पार्टी कह रही है हरियाणा में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस का काम ये था, मैं ये सलाह दे रहा हूं, मैं उनको कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं उनको, कांग्रेस को, लेकिन मैं सलाह दे रहा हूं कि अगर आप गठबंधन का धर्म नहीं निभाएंगे, एकला चलो की राजनीति विधानसभा में करेंगे, तो निश्चित जो परिणाम है वो इसी तरह परिणाम आने हैं, चाहे वो कहीं का भी हो। लेकिन इसमें आपको गठबंधन का धर्म लेके आपको चलना पड़ेगा। आज 15 सीटें जो है कांग्रेस ने हरवा दी आपको, 67 सीटों पे कांग्रेस जो है अपनी कांग्रेस अपनी जब्त कर ली, जमानत जब्त कर ली। तो कहने का मतलब ये हुआ
संजय द्विवेदी जी, कहने का मतलब ये हुआ कि केजरीवाल जी जो आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पे कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के हमको हराने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ, क्या कांग्रेस ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया? कुछ ना कुछ परसेंटेज कांग्रेस का भी ज्यादा परसेंटेज है, क्योंकि कांग्रेस को वोट में 6 मिले हैं। तो अगर कांग्रेस के वोट बढ़े तो आपसे वोट घटे। जी, दुरुस्त बात बात। इसकी मेन बात ये आप देखिए ना, तो अगर कांग्रेस अगर सीटम चुनाव लड़ती, गठबंधन चुनाव लड़ती, जो फायदा बीजेपी हुआ, देखिए 2 तरह से फायदा होता है। एक हम डायरेक्ट किसी पार्टी को फायदा दे, एक हम पीछे से फायदा, जैसे हम मायावती जी का नाम लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में या कहीं पे भी, तो इनके खड़े होने से क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। तो लेट्स गो टू वाली दारूवाला साहब। जी 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 सर, द्विवेदी जी आपको वापस आते हैं। दारूवाला साहब अभी तक कुछ बोले नहीं है। दारूवाला साहब, 27 बरस के बाद, आफ्टर 27 years, you're coming back to power in Delhi. Your last chief minister was Sushma Swaraj ji. We don't quite know who the chief minister will be this time. Will it be Sahib Singh Verma sahab's son? The same Parvez Verma, he'll be the... And there's a woman candidate also. They're saying they're going to take a woman as a CM this time. 27 years afterwards, you're coming back to power in Delhi. Only thing is, the PMC is controlled by the Aam Aadmi Party. The LG is of course yours. The Home Ministry is yours. So I don't expect any conflict with the LG. In fact, the standard joke is that the Lieutenant Governor can go on leave for the next 5 years. अगले 5 साल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लीव पे चले जाएं, क्योंकि जो प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर से आएगा वो एकदम पास हो जाएगा। अनलाइक आम आदमी पार्टी के वक्त जब जो प्रपोजल आता था वो रोक दिया जाता था। अब आप बोलें सर, दारूवाला साहब। Correct. Good evening, Rajiv sir, Pradeep sir. Coming back to the studio on the Delhi election, which I happened to be a part for only 10 days, when the manifesto was rolled out with JP Nadda ji. We were at the BJP headquarters. What we tried to do over there, now you can point what I'm saying over here, what we did over there. In each and every constituency, may it be from the upmarket area, the Newtown area, or the very remote area of Delhi, the RSS cadre has gone and taken 60,000, mark my words, 60,000, not less, maybe more, 60,000 1-to-1 बैठक, 2 लोगों की, 5 लोगों की, we have taken बैठक, और वो बैठक लेकर we approach the people. I said, what is your desire? We are going to come with our flagship programs. Delhi has its own problems of water, electricity, the congestion on the road, the social security, the law and order problems. He said, we are assuring you, we will give you safety first. We will give you that minimum money in the Mahilaon ki account mein. With this assurance, like they said, Modi ki guarantee, Bhajpa ka ki guarantee, and our cadre going door to door, we have garnered this vote. And this credit goes nothing to the foot soldiers. All these foot soldiers are the people who got BJP the number that we can see today. Nevertheless, you know, Rajiv sir, blaming, we are here after 27 years, what happened? Aapka Kejriwal has been dismantled. It's besides the point. Now we need to look ahead. Our agenda now is Bihar. In Bihar, we have a Samikaran, we have an alliance over there, keeping that intact, keeping the essence, keeping the love intact. How do we go to the people? How do we work? But Daruwala sahab, coming back to Delhi, I want to say that मोदी साहब ने एक वक्त में क्या कहा था कि रेवड़िया बट रहा है, देश हित में नहीं है। बट आपने जो अनाउंस किया है दारूवाला साहब, 2500 पर मंथ वुमन को देंगे, आयुष्मान में 10 लाख आपने बढ़ा दिया, 5 लाख को 10 लाख कर दिया, 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री, 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी हाउस। यानी आपने भी उस चीज को मोदी साहब भूल गए, मोदी साहब आगे बढ़े, और ये जो रेवड़िया बोल रहे थे वही स्कीम्स, पॉपुलर स्कीम्स आपने लोगों के सामने, अगर केजरीवाल कम करा था, आपने हर चीज में केजरीवाल से ज्यादा प्रॉमिस किया। तो what forced Modi Sahab to change this stance? It is victorious. You have achieved the highest margin ever in your BJP history in Delhi. But was it because
He's got one step ahead of Revadiya, Kejriwal's Revadiya. Daruwala sahab. Correct. Over here, Pradeep sir, what Kejriwal ji was giving, we called it Revadiya, the statement. Hindi I'm not so good with. But what I mean to say is what we are giving to the poor is what they deserve. No two ways about it. Kejriwal ji had a good desire, he had a good intention, he wanted to help the poor. Yes, my Prime Minister says there is two class of people in this country. One is the have and the have not, and I work for the have not. गरीबों को जो उनका हक देते हैं उसे सबसे पहले रेवड़िया कहना ये गलत है. I do not support The it. PM said It is their hak. I said I am not refuting what my Prime Minister said. I feel, I'm telling you what I feel over here, Pradeep sir, Rajiv sir, it is their hak. What we give, it will not wipe out their poverty, but at least they have that assurance that 2,500 is coming. They're going to get that 500-600 watts of electricity. Darwala sahab, may I say something? They're going to Darwala get sahab. water. These are the basic three things that any Darwala sahab, may I government, say something, any please? government gives, and I think it is the Ali hak Darwala the poor sahab, should get. एक छोटी सी बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ. छोटी सी बात है. मैं दिल्ली से हूँ सर. I came to Bombay in 1993. I am a दिल्ली I वाला. know. I know. तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं भी वहाँ पर था, ever since I became a journalist, हम लोग यही देख रहे थे कि जो हम यहाँ पे झोपड़पट्टी बोलते हैं ना, दिल्ली में जेजे कॉलोनी बोलते हैं. जेजे यानी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, तो उसको जेजे कॉलोनी बोल दिया जाता है. एंड दे आर ऑल अनऑथराइज्ड. मैं 1982 से सुन रहा हूँ सर. आई एम नॉट जोकिंग. दारुवाला साहब जरा ध्यान से सुनिए. 1982 से मैं सुन रहा हूँ कि ये सारी रेगुलराइज होंगी, सबको अच्छे अच्छे घर मिलेंगे, सब कुछ होगा. सर आज तक कुछ नहीं हुआ. Sir, housing is a major problem in Delhi, just like Bombay. I am really telling you, your government in Delhi will have to pay attention to two or three things. One is housing. Number two is clean water. Delhi does not get clean water, sir, at the moment. It's terrible. And of course, the pollution. There was a scheme, let me point this out to you. By the way, I had authored that scheme and sent it via our friend Mayank Gandhi, because Mayank Gandhi sahab was at that time in the Aam Aadmi Party, कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, हमारे दिल्ली के साथ हरियाणा का बॉर्डर लगता है ना सर, हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर you have to have at least 55 lakh pine trees, or along with banyans, along with neem trees, along with jamun trees, all the trees which are available there in New Delhi, sir, at an angle of around 48 to 52 degrees. It's like a swathe, like this. I got it, yeah. And you will be able to minimize the pollution coming in from that Parli burning. Now, this was given to Mr. Kejriwal. Mr. Kejriwal even made an announcement that we are going to do this. I don't think he planted even a single tree. Class. Not one single tree. I mean, you know, there are very simple solutions available for Delhi's problems. But unfortunately, Daruwala sahab, I am telling you, you are not going to use them. मैं आपको आज लिख के देता हूं, आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर कितना खर्चा आएगा सर? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 करोड़ का खर्चा आ जाएगा, 15 करोड़ का खर्चा आ जाएगा, 15 करोड़ का खर्चा आ जाएगा सर. किसी को क्या बचेगा सर? अब आप देखिए, स्कीम आएगी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 2,000 करोड़, ये स्कीम्स आएंगी सर. एंड Delhi's problems will never be solved. Let me tell you this. You want to say something on that, Daruwala sir? Rajiv sir, you know, I shouldn't be saying all the time. What you suggested, it's so brilliant, such a brilliant idea. The trees facing the 45 degrees westward to 48 start to pollution 52. coming in. 45 degrees Northwest, yeah. 48 to 52. Northwest, yeah. Yeah. See, this is such a pragmatic solution. Why not? I personally know a few people in the BJP. I do not want to give names in Delhi. I'm there next month over there. We will bring this up. And if nothing happens, I can assure you, our association, our business community, even if we take these things in our hands, forget government क्या करेगा, government कितना देगा. सर पूरा खर्चा जो है उसका 30 करोड़ का है. 10 crores is nothing, sir. 30 crores, that's it. 30 crores over 5 years. Nothing is nothing. उसमें से even if the survival rate is 60% of the plants that we put over there, sir, our problem is solved for the next generation.
Believe me, you sir. So is the case with the I will Yamuna. take I don't want to talk about the sir, Yamuna right It now. will take it and वो स्कीम को कुछ आपके Sir, नाम से, I- आपके परिवार that- के नाम से हम लॉन्च करेंगे. Sir, please don't. But you launch it in the name of the people of Delhi. दिल्ली के जो लोग हैं उनके नाम से आप लॉन्च कीजिएगा सर. दारा शिखो के नाम से लॉन्च कीजिएगा ना सर, प्लीज. अली दरवाला साहब, Yeah, I'm listening to you, sir. why don't you launch this scheme in the name of Dara Shikho? The real prince No, of Delhi. उनके नाम से लॉन्च कीजिए ना. खैर, that's a separate issue and I will not, Pradeep ji, I promise I will not talk about the Yamuna because if I start talking about the Yamuna I will not be able to stop. So we need to go to Gopal So ji. let me go to Gopal Tiwari साहब. गोपाल तिवारी साहब, ये तो हैट्रिक कर दी आपने. गोपाल तिवारी साहब, आपको आवाज आ रही? हाँ, आ रही है सर, थोड़ा कम आ रही है. हाँ. सॉरी, हैट्रिक. Hello. 0-0-0. ये क्या है सर? आवाज नहीं आ रही. अभी आ रही है क्या आवाज सर? हाँ, अभी आ रही है. बस अच्छा सर, वेरी गुड. तो आप ये बताएं सर कि कांग्रेस की हैट्रिक पर आपको मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज तक कभी किसी पार्टी के साथ, इस लेवल की पार्टी, वो पार्टी जिसने हमें आजादी दिलवाई, वो पार्टी जो 15 साल तक हुकूमत में थी दिल्ली में, 2015 में 0, 2020 में 0, 2025 में 0. सर ये क्या है? प्लीज सर देखो सर, लोगों की दो चॉइस. आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, फर्स्ट क्लास आ रही है. हाँ. सर ऊपर सर, देखिए ना, ऊपर कैमरे की तरफ देखिए ना. आपने जो कहा अभी बिल्कुल सही है. आजादी दिलवाने से दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने तक कांग्रेस का योगदान है. और आज भी वहां दिल्ली में जो शीला दीक्षित का गोल्डन एरा डेवलपमेंट का वो समझा जाता है. लेकिन सर हमारी डेमोक्रेसी है, उसके कुछ पहलू है. तो अभिव्यक्ति स्वातंत्र, विचार स्वातंत्र, एक्सप्रेशन जो फ्रीडम है हमें दिया जाता है, तो उस कारण उसका फायदा लेके कांग्रेस को 2013-14 में काफी बदनाम किया गया. मतलब उसमें अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, लोकपाल बिल, ये सब था. और ये सब लोग साथ में हाथ लेके कांग्रेस के ऊपर भारी तरह से टूट पड़े थे, रामलीला मैदान. और उसमें कांग्रेस ने मतलब उसको ऑब्स्टेकल करने की, प्रिवेंट करने की कोई कोशिश नहीं, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी मानते हैं. सत्याग्रह आंदोलन का जो अपना एक अधिकार है, वजूद है, उसको हम सम्मान करते हैं. तो वो कारण से काफी बदनाम हुए. अरविंद केजरीवाल लेके सब ने जो भी आरोप लगाया, 10-12 साल में कुछ भी साबित नहीं कर पाए. ना बीजेपी साबित कर पाई, ना आम आदमी केजरीवाल कर पाए. फिर भी 10 साल का जो एक तजुर्बा लेके हम इंडिया अलायंस जो बनाया था, उसमें हमने आम आदमी पार्टी को लिया था, क्योंकि हमारा सबसे पहले मेन तो ज्यादा इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, टू सेव द डेमोक्रेसी, टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब बातें हैं. और लोकतंत्र और आजादी और संविधान के हित में हमने लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमने देखते हुए ये अलायंस बनाया था. अभी लोगों के सामने सर दो चॉइस रहती है सर, तीन चॉइस नहीं रहती है. एक तो रूलिंग पार्टी जो है वो अगर अच्छा काम कर रही है, या तो उस तरफ जाओ, या तो आप उनको नहीं चाहते हो, या तो सेकंड ऑप्शन उनके जो खिलाफ है. तो ये है ना कि भी अभी किसने वोट किसके काटे, लेकिन उन्होंने उनको वोट दिए क्या, उसके बाद भी हमने एक अपना वजूद बनाए रखने की कोशिश की, कांग्रेस का अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश की, और हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है. तो ये सब बातें गोपाल जी, संगठन पे, गोपाल जी, all the alliance partners are blaming Congress. Uddhav Thackeray ji blaming Congress. Omar Abdullah blaming Congress. आपके जितने घटक दल, अखिलेश यादव जी blaming the Congress. तो क्या ममता बनर्जी blaming the Congress? They are all blaming the Congress for the defeat of Aam Aadmi Party in Delhi. Where was the Congress wrong? क्या आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते, थोड़ा कम सीट्स लेके आप ये पूरे आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ लड़के, दैट यू सेड, आपने खुद कहा कि 3 वे तो वोटिंग नहीं करता है, इट आइदर द ऑपोजिशन और दी. तो वेयर डू यू फेल? ऑल द अलायंस पार्टनर्स एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ, इंडिया अलायंस, और आपने फॉर्म किया था इसको.
सर बिल्कुल सही कहा मैंने, जो भी मैं कह रहा हूं तो आप भी जो कह रहे हैं, तो हमने सर एक बार अगर ऐसा डिसाइड हुआ है कि लोकसभा के लिए हम इंडिया अलायंस का जो एक बंधन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टेट में नहीं करेंगे अपने अपनी पार्टी। देखो सर 10 साल पहले अगर कांग्रेस को भी बदनाम किया गया, लेकिन भाजपा को अगर कांग्रेस हटके भाजपा सत्ता में आई, मोदी जी सत्ता में आए, उसके खिलाफ फिर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उनकी भी एम्बिशियस क्रिएट हो गई। अरे भैया, आपको अगर वो रूलिंग पार्टी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको यू शुड टेक मतलब कोई एक स्टैंड लेना चाहिए। जो कांग्रेस है उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह हमारे कांग्रेस के कोई खास मतलब कार्यकर्ता और इसमें से नहीं आए थे, वो आईएएस ऑफिसर थे, आरबीआई के गवर्नर थे। उसके बाद उनको भी कांग्रेस ने अपॉर्चुनिटी दी ना सर, 10 साल दी। तो अगर अरविंद केजरीवाल आईएएस ऑफिसर है, वो भी इनकम टैक्स में हाँ जो भी है, आईएएस है, आईपीएस है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, लेकिन उनकी भी एम्बिशन इतनी क्रिएट हो गई कि मैं ही करूंगा, मैं ही सीएम बनूंगा, मेरी पार्टी होगी। इतने जल्दी हर कोई सर अपने किसी की एम्बिशंस को हम कौन रोक सकते हैं। तो ये सब जो माहौल है, तो दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं, हरियाणा में गोपाल तिवारी जी सुनिए, कांग्रेस गोपाल तिवारी जी सुनिए प्लीज सुनिए। सर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी जंगपुरा, दिल्ली में जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप शायद जानते नहीं होंगे, आप पुणे से। अली दरवाजा साहब सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे बड़े भाई, कैसे मेरे बड़े भाई, क्योंकि ही इज दी एल्डर ब्रदर ऑफ माय क्लासमेट फिरोज सूरी। फिरोज सूरी के बड़े भाई फरहाद सूरी मेयर होते थे दिल्ली के। उसके पहले उनकी माता जी मिसेस ताजदार बाबर, माय आंटी, शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द डीपीसीसी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और उनके नेतृत्व में गोपाल तिवारी जी वो 10 साल तक रही, 10 years शी रिमेन डीपीसीसी प्रेसिडेंट, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस दिल्ली की एक भी सीट नहीं हारी। लेकिन फरहाद सूरी तक हार गए, मतलब मेरी समझ के बाहर है। That man has worked so hard over there. I feel for him. मेरा अभी दिल नहीं कर रहा उसको फोन करने का। Sir, of course, the gentleman who was my classmate unfortunately died in an accident in Delhi. Now, all I'm saying, Gopal Tiwari ji, is there seems to be something drastically wrong. What I have been told is, what is this sound that I'm getting from somewhere? ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? What is this? What is the sound that I'm getting, gentlemen? I can't hear a thing. जी गोपाल तिवारी जी, ये बताएं, ये कहा गया है कि आपके वर्कर्स जो हैं उन्होंने काम ही नहीं किया। गोपाल तिवारी जी बोलिए। सर देखो, दिन ब दिन एक जमाना था तो पार्टी का काम करने के लिए सेवा भाव से लोग काम करते थे जी। अभी प्रोफेशनलिज्म इतना बढ़ गया है कि अगर देखो, कांग्रेस इज नॉट केडर पार्टी, कांग्रेस मूवमेंट, कांग्रेस विचार है। कांग्रेस विचार इसलिए है कि भाई अगर देखो सत्ता नहीं मिली तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलने वाला, ऐसी तो स्थिति है नहीं। जो महात्मा गांधी ने जो 7 सीन्स ऑफ सोशल 7 सीन्स बताए थे, उसमें सिद्धांत बिना राजनीति ये पाप बताया था। अभी सत्ता बिना राजनीति ये पाप हो गया क्या? ऐसी परिस्थिति आ गई। उन्होंने बिना कमाई का धन पाप बताया था, तो उसके लिए सूद कताई करने का उनका एक आइडियोलॉजी था। तो ये जो बात है कि भाई हम जनता के लिए, जनता के हित के लिए बहुत पारदर्शक तरीके से सत्ता गवर्नेंस दे रहे हैं। जनता चाहेगी तो हमें चुन के देगी, हमें पन्ना प्रमुख करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। देखो सर, आप 70 साल में कांग्रेस अपना बिल्डिंग खड़ा नहीं कर पाई जितने 5 साल में बीजेपी ने खड़ा कर दिया। आज बीजेपी का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन में सब कुछ छिपा हुआ कुछ भी नहीं है, सब सामने आया। बट तिवारी गोपाल जी, जब भी स्क्रीन में दिख रहा था वही अजय माकन दिख रहा है, शीला दीक्षित का लड़का दिख रहा है, यानी परिवारवाद इतना बढ़ के दिख रहा था कि पूरे दिल्ली में सिर्फ यही लोग है
तो नेक्स्ट जनरेशन और इंडिपेंडेंट लीडरशिप आपने क्रिएट ही नहीं किया है। वो अजीत माकन आ रहा है, वही दीक्षित जी आ रहे हैं, अजय माकन, ये अजय माकन। तो द पॉइंट इज सर मैं बोल रहा हूँ, देखो कांग्रेस नया लीडरशिप क्यों नहीं आ रहा है दिल्ली में? सर वो मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप कांग्रेस पार्टी के पास फंड कितना है? कांग्रेस के इलेक्शन के सांसद के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज किए गए, चुनाव आयोग है, इनकम टैक्स है, पैदा करने के लिए आपको फंड की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अजय माकन और दीक्षित जी शायद ऑफिस से बाहर निकलता ही नहीं होगा, तो संगठन बनेगा कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो बीजेपी का फंड कितना है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से कितना फंड जमा हुआ है, प्रोफेशनल कभी आज तक प्रैक्टिस कांग्रेस ने कभी अपनाई नहीं थी। आप चंदा दो धंधा दो ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया था, और उसके बलबूते हमारी अगर प्रोफेशनली हम कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे चंदा दो धंधा दो कांग्रेस का संगठन बढ़ेगा, कांग्रेस का संगठन बढ़ेगा। प्रोफेशनली हम पैसा देके कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता को खड़ा करेंगे। गोपाल तिवारी जी, ये प्रमुख ये क्या है सर, ये जो है तो उसके लिए काफी पैसा, काफी मशीनरी, ये सब आज तक तो आप खर्चिए ना वैसे। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, प्रोफेशनल गोपाल तिवारी जी, अगर महाराष्ट्र की बात करें, प्रोफेशनली गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी, अगर महाराष्ट्र की बात करें, आपके जितने दिग्गज नेता हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, देखो चुनाव, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आप क्या बोल रहे हैं? आप जो हैं, एक मिनट, आप बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं। राजू जी प्लीज गो अहेड सर, गो अहेड, बोलिए। हाँ देखो, चुनाव आयोग ने अभी परसों जो इसका काउंटिंग डे था, उससे पहले चुनाव खत्म होने के बाद तीसरे दिन तक, आखिरी तक आंकड़े दिए ही नहीं। क्या बोले सब? राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करा है, सर एक जर्नलिस्ट सीनियर, सर आई वुड लाइक टू आस्क यू, सर आप मेरा सवाल ले लेंगे? सर प्लीज आप मेरा सवाल ले लेंगे क्या? देखो सर कैन यू टेक माय क्वेश्चन? आप आंकड़े बताना नहीं चाहते, तो हम एक साथ कितने लोगों के साथ लड़ रहे हैं? गोपाल तिवारी जी, आपको सादर प्रणाम। अरे कांग्रेस, सर गोपाल तिवारी जी विद रिस्पेक्ट, गोपाल तिवारी जी विद रिस्पेक्ट प्लीज, महाराष्ट्र में आज तक आपको 16 सीटें नहीं मिली। यू हैव गॉट द लोएस्ट फिगर एवर इन महाराष्ट्र, ओनली 16 सीट्स। यहां पर भी यही चीज थी, पैसा नहीं है। सर आपके जितने दिग्गज नेता हैं, सर मेरी बात सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए सर प्रश्न सुन ले प्लीज। आपके जितने दिग्गज नेता हैं, किसी के पास 1000 करोड़ है, किसी के पास 2000 करोड़ है। सर इन नेताओं ने कांग्रेस को कामधेनु गाय की तरह इस्तेमाल किया। जब तक कांग्रेस जो थी वो सत्ता में थी, तब तक ये लोग कांग्रेस के साथ थे और मल्टी बिलियनियर बन गए। आज कांग्रेस को इनके धन की जरूरत है, जो धन इन्होंने कांग्रेस के द्वारा कमाया। तो इन लोगों को क्यों पाल के रखा हुआ है आपने, गोपाल तिवारी जी? इफ यू वांट आई कैन नेम नेम्स। बोलिए, अब आप बोले सर। आपको लगता नहीं है कि आप जैसे नेता को, गोपाल तिवारी जैसे नेता को मौका मिलना चाहिए? अब आप बताइए सर, बोलिए। सर वो कुछ बातों पे तो कांग्रेस पार्टी अपना आत्मचिंतन करेगी, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। अपने आप को कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई नेताओं की, वो उनके समझ में आएगा और वो आगे चल के मदद के लिए सामने आएंगे। उससे और ज्यादा मैं नहीं कह सकता। किसी के पास ज्यादा धन है तो वो ईडी सीबीआई के डर से तो उन्होंने बीजेपी का साथ पकड़ लिया है। द्विवेदी साहब, एलिमिनेशन ऑफ ऑपरेशन टाइगर के माध्यम से आपके तो पहले शिंदे साहब ने पूरे झंडे वगैरह सब ले लिए, अब बाकी कुछ थोड़ा बाकी है, उन सब को लेके जाने का पूरा प्लान जिस प्रकार से चल रहे हैं, उसमें 9 एमपी भले सामने आके कहा कि हम उद्धव जी के साथ है, बट अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेशन से उद्धव जी को, एकनाथ शिंदे जी को धमकी देना पड़ा कि अगर मर्द के औलाद है तो ईडी, सीबीआई, आईटी और पुलिस को निकाल के मैदान में मेरे सामने खुलेआम आइए लड़ने के लिए। तो द्विवेदी जी क्या है ये? अब
जो बचा कुचा वो भी जाने वाला है, ऑपरेशन टाइगर। देखिए प्रदीप जी, बजाज जी, जो हमारे साथ चुनाव लड़े थे, उनको मालूम है कि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं और उनको वोट मिला, ये भी वो जानते हैं किसकी वजह से हम जीते हैं। बाकी इनका तो रोज ये रहेगा कि हम इसको तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तोड़ने फोड़ने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। वीर सावरकर जी को भारत रत्न देना, माने हिंदू देश सम्राट को भारत रत्न देना, उसके बारे में कोई बात नहीं करना है। डॉलर 86 रुपए पहुंच गया है। आप जीतने हारने की बात ना करिए, हम दिल्ली चुनाव जीत गए। दिल्ली चुनाव जीतने बहुत समीकरण है जिसकी वजह से आप जीत हार होती है, या महाराष्ट्र में आप जीत गए, इसके बहुत समीकरण होते हैं, बहुत चीजें होती हैं जिसकी वजह से पार्टियां जीतती हैं और हारती हैं। लेकिन वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं देना, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देना, डॉलर 86 रुपए पहुंच गया है। यही प्रधानमंत्री जी कहते थे 52 रुपए तो कहते थे कौन सी दुनिया में रह रहे हो सर? देश का सम्मान गिरता है, देश सर का क्या बोल रहे सम्मान गिरता है, लेकिन आज का देश का सम्मान नहीं गिरता। मैं परिवहन घोटाले की बात अभी हो रही थी, सिंधे जी जब मुख्यमंत्री थे, साढ़े 87 करोड़ रुपए का परिवहन घोटाले की, द्विवेदी जी 8750 डॉलर का रेट आज का है 87 रुपए 50 पैसे, 86 नहीं, मैंने बताया है 8750 सर, अभी 88 पहुंचेगा सर, सेंचुरी मारेगा डॉलर, बोल रहा हूं आपको मैं उसी पे आ रहा हूं बजाज जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी सिंधे जी के खिलाफ जब मुख्यमंत्री थे तब उनके बाद परिवहन निगम था, और जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हैं तो इन्होंने दिखाया था मैं कितना सच्चा आदमी हूं। उस समय मैंने विरोध नहीं किया कि सरकार हमारी चली जाती, लेकिन जो 2800 करोड़ रुपए घोटाला है इसकी जांच कितने दिन चलेगी? यह जितने लोग मारे गए थे महाराष्ट्र में, कानून व्यवस्था गड़बड़ है, उसकी जांचें कितने दिन चलेंगी? इसका जवाब कौन देगा? आप सरकारें बना लीजिए, सरकारें बनती हैं। मैं तो कांग्रेस सलाह देता हूं कि अगर कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति को न अपनाया तो निश्चित आने वाले दिनों में कांग्रेस को नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। तो गठबंधन जैसे इंडिया गठबंधन बना था, आपके चुनाव के लिए चुनाव के लिए बना था, एमपी के लिए बना था, ऐसे हर स्टेट में आपको अभी से विचार करना पड़ेगा कि हम किन पार्टियों से गठबंधन करें, कैसे करें और उसके आगे बढ़े। मैं आता हूं सर आशा भोसले जी, द्विवेदी जी, आशा भोसले जी ने खुलेआम एकनाथ शिंदे जी का तारीफ किया। बोले एक बाला साहब ठाकरे जी थे जो पार्टी का निर्माण, फाउंडेशन, नींव और लेके गए जब तक वो ले जा सकते थे। उसके बाद अगर पार्टी उठाया, किसी ने एक उठाव किया और शिवसेना को मजबूत किया, वो है एकनाथ शिंदे जी। आशा भोसले जी खुलेआम आज के तारीफ में बाला साहब ठाकरे जी के बाद एकनाथ शिंदे जी का नाम लेना कि शिवसेना के सही हाथों में, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है द्विवेदी जी, इसको आप नकार सकते हो? प्रदीप जी, हाँ, 2014 में चुनाव अलग अलग लड़े थे, चुनाव जो है वो अलग अलग लड़ा गया था, गठबंधन चुनाव नहीं लड़ा गया था जी, करेक्ट। 63 सीटें हमारी आई थी, तब आशा भोसले कहां थी? देखिए इधर जितने कलाकार हैं, जितने अभिनेता हैं, नेता हैं, ये सब सत्ता लोलुप होते हैं सर। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने क्वेश्चन उठा दिया है तो मैं आपसे बता रहा हूं। चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे आपके आशा भोसले हो, चाहे जो भी हो, इनका एक सम्मान है। चाहे अभी मैं देख रहा था जो झप्पी पप्पी ले रहे थे, एक सिंगर साहब थे, नाम नहीं लूंगा मैं। तो जिस तरह के जो लोग हैं ये सब सत्ता लोलुप होते हैं। द्विवेदी जी, इसके पीछे कारण क्या है मालूम है ना आपको? 63 सीटें जीते थे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। सर पॉलिटिकल रीजन नहीं है क्या सर, ये पॉलिटिकल रीजन नहीं है। तोड़ के आज संगठन तोड़ के बीजेपी के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग देख लेते, चुनाव चिन्ह जो मिला, शिवसेना नाम मिला, उसका फायदा मिल रहा है। और उद्धव ठाकरे को उद्धव अलग पार्टी उनकी है, अलग चुनाव चिन्ह है, और तब भी 20 सीटें हैं। राइट, तो बहुत बड़ी बात है ये। दारूवाला साहब वांट्स टू से समथिंग, और बाकी लोगों को समझना चाहिए। जी दारूवाला साहब बोलिए, यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड सर। Yeah.
I want to say something, Rajiv sir, to you especially. Now, we should stop attacking the spokesperson from Congress and from Shiv Sena. I'll tell you why. Because now they are on defeat, they are on back foot. They are trying their best to put up a front. They are coming out television shows. They are being present. But if this kind of trend Darwala continues, sahab, may I can stop assure you? you, Rajiv sir, let me finish. darling. For Please. one second only. After that, you continue. I wanted to tell Sanjay Dwivedi ji and Gopal Tiwari ji, आशा भोंसले जी ने जो बोला है वो क्यों बोला है सर? वो इसलिए नहीं बोला है कि एकनाथ शिंदे साहब सत्ता में है, कुछ है सत्ता में है, दैट मैटर्स, आई एग्री विद यू, लेकिन उद्धव ठाकरे जी और उनकी पूरी फैमिली जो थी वो हमेशा लता जी के प्रशंसक रहे, उन्होंने आशा जी की आज तक कभी प्रशंसा नहीं करी। तो ये दोनों बहनों में अंतर कलेबी था जिसकी वजह से आज ये स्टेटमेंट आई है। आई नो देम बोथ, मैं दोनों को जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं। इनफैक्ट द ओनली लाइव इंटरव्यू, सर दारूवाला साहब सुनिए, द ओनली लाइव इंटरव्यू ऑन अ न्यूज चैनल दैट लता जी एवर गेव was to the RKB show, sir. That's it. She never gave a live interview before or after. They were all recorded. You know, but nothing wrong, दारूवाला साहब, there's nothing wrong अगर गोपाल जी और द्विवेदी जी कह रहे, उनका ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर के पास वक्त है यूएस फ्रांस जाने का, मणिपुर गए नहीं, मणिपुर के सीएम रिजाइन किया, राहुल गांधी जी का कहना तब रिजाइन किया जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया मणिपुर असेंबली में। तो अगर गोपाल जी कहते हैं, अगर द्विवेदी जी कहते हैं कि ये एक्सेसेस है, मोदी साहब को अपने ही देश में जाने का वक्त नहीं मगर यूएस, तो हाउ आप नकार सकते हैं क्या दारूवाला साहब? 100%. The resignation is accepted. Manipur is in turmoil. Everybody, Rajiv sir, you also know that things need to be worked out over there. My take is different. What is happening in Manipur? It is an ethnic fight. I have said time and again that it needs to be resolved. Sir, it's a drug fight. It's a fight over narcotic trade. It's not an ethnic fight. But बोलिए, no confidence motion. It's a ethnic Sir, fight. बोलिए. I'll tell you why. I'll tell you why. There are total intel reports over there on conversion, on the authority that a certain community wants to make in Manipur, and then there is the traditional old Sanatani who are resisting, and this has then led to what you said, that things like narcotics. This has come in secondary. It has bred this. All these movements are funded by what income. The government is trying its level best. Being the citizens of India, you cannot take capital things in your hand, like you cannot attack and you cannot use excessive force. You have to do it. Maybe I agree, we are slow on it. Maybe we do not at this point in time have a solution to it. Our Home Department is working very strongly. I would request if Dwivedi ji or Gopal sir, if their party leadership has a solution, forget politics apart, इसको बाद में देखिए, अगर कोई solution है, अगर राहुल जी जाने से या उद्धव जी जाने से या कोई भी एक बड़ा एक स्टॉलवर्ट नेता हुआ जाने से अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है तो आई वुड सैल्यूट देम सर। पार्टी बाजू में, राहुल गांधी जी का एलिगेशन है कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पर लाए, बीरेन सिंह हारने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दूसरा उन्होंने कहा कि बीरेन सिंह जी ने इंस्टिगेट किया है, पूरे मणिपुर को डिवाइड किया है। बोलिए दारूवाला साहब। नहीं, मणिपुर डिवाइड नहीं किया है, वो कह रहे कि हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के पहले थिंग्स वुड हैव स्वेड इन अ डिफरेंट एंगल, सो द सीएम हैज ऑप्टेड टू वॉक आउट। मे बी देयर इज ट्रूथ इन इट, मे बी ही इज राइट, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग ओवर हियर। Maybe Rahul Gandhi ji can come up with a solution. Forget who the state goes to, who has the power over there. Let us first get peace over there. That is utmost priority. If Rahul ji has a solution, I welcome him on your show. I say I welcome Rahul Gandhi ji. If you can step into Manipur, Modi ji at this point in time has put his home ministry. Amit Shah ji is working overtime. But at the end of the day, रिपोर्टर्स विल आस्क वहां हो क्या रहा है। आप लोग का काम है सवाल पूछने का। अगर मेरे पास आपको देने के लिए जवाब नहीं है, इसका मतलब 100% मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। मगर आप लोग के पास अगर सोल्यूशन है तो आई रिक्वेस्ट यू टू कम अहेड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, I time and again say that 60 years what we have come here, maybe at a slow pace,
So you cannot discount what the Congress did. Congress did a good job. I always have very high regards for Rajiv Gandhi, sir. Indira ji had her own style, which did not go down with certain people, certain community. But Rajiv Gandhi tried his level best. We had to lose such a good leader like Rajiv Gandhi for this. We all know for what. I don't want to attract more headache behind me. Yes. But what has happened is they has got us here. All I can tell you is, rather than blaming somebody, I believe in doing a good job. If my party can do a good job, if I can be better than Arvind Kejriwal, if I can be better than Priyanka ma'am, Priyanka Gandhi, I really have a lot of respect for her, because when the results were declared, the way she spoke, the way she congratulated BJP, and the way she said, I am accepting the mandate, has really raised my hopes that, yeah, Priyanka Gandhi can lead the party. They can become a very powerful opposition if given a free hand. If brother-sister duo can be worked out, our country, at the same time, though we are unstoppable, BJP is unstoppable for our flagship programs and for things that we come up with. But at the same time, we need torchbearers. We need people to show us whether we are going wrong. Yeah, we need an opposition. And Priyanka Gandhi, if given a chance, with her education, her charisma, she can lead the party back to the glory, at least as a strong opposition in front of BJP. And coming to Uddhav Thackeray ji, I've always told you time and again, lot of respect. He is our natural alliance. He was dissuaded, he was dismayed, he was misdirected. Uddhav ji is a tall leader. You cannot discount the popularity of Uddhav ji. महाराष्ट्र के अंदर आज भी एक कैडर है, एक फॉलोइंग है, एक शेतकरी का तबका है जो उद्धव जी को, उनके जो पिताश्री है उनको और उनके फैमिली को बहुत एक अलग आदर से देखता है. If only this alliance can be worked out and Uddhav ji can be on the same team as us, there can be nothing. It will not be Maharashtra, it will be Maharashtra. द्विवेदी जी आप बोलिए द्विवेदी जी बोलिए. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए जीएसटी जो है अगर पेट्रोल डीजल पे लागू कर दी जाए तो शायद पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे. जीएसटी दूध दही में भी लगी हुई है, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं में भी लगी हुई है, किसानों में भी लगी हुई है. अभी बजट पेश किया गया, इसमें इस पे विचार ही नहीं किया जा रहा. 12% टैक्स लग रहा है, 12% टैक्स है. तो कम से कम जनता के विषय में सोचना चाहिए. तैयार नहीं है माननीय मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री को, कि जिस तरह से आपने जीएसटी का उपयोग किया है. भाई मनमोहन सिंह जीएसटी लाने वाले थे लेकिन आपने विरोध किया इसलिए वो नहीं लाए. लेकिन आप अगर लाए तो आपका स्वागत है. लेकिन वो जीएसटी के माध्यम से जो मूलभूत चीजें हैं, मूलभूत हमारी जरूरतें हैं, उन पे तो कम से कम नहीं लगना चाहिए. स्वास्थ्य सेवाओं पे, दवाइयों पे, जो हमारी जरूरी दवाइयां हैं उन पे नहीं लगना चाहिए. सर हेल्थ इंश्योरेंस, किसानों का उन पे नहीं लगना चाहिए. अब आप जो है लाडली बहन योजना में जो 2100 रुपए आपको देने हैं तो अब छटनी क्यों की जा रही है? जो मुझे सुनने मिला, दारू वाला जी बताएंगे आपको कि अब ये हो रहा है कि साहब उसमें छटनी करके पैसा दिया जाएगा. चुनाव से पहले तो आपने 2.5 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ बहनों को, माताओं को आपने पैसे बांटे 7,500 रुपए. लेकिन आज की डेट में उन माताओं बहनों में की छटनी क्यों की जा रही है? सबसे बड़ा प्रश्न है ये. और आपने 7 गारंटियां दी थी, उन गारंटियों क्या हुआ वो अभी तक नहीं. देखिए इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ देश बचाओ, और उन्होंने गरीबों के प्रति कार्य करती थी. शायद भारतीय जनता पार्टी इस नारे का माहौल आते हैं. 81 करोड़ जनता को पिछले 10 साल से 8 साल से आप अनाज दे रहे हैं. क्या उनमें से 10-20 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए गए जिससे वो संख्या 81 से 61 पे आ जाए या 50 पे आ जाए? तो आप कौन सी गरीबी हटाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भारत के नागरिक आज तक समझ नहीं पा रहे हैं. आप जब 81 करोड़ जनता को अगर दे रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ गलत दे रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको देने से पहले उनके रोजगार के संसाधन, महंगाई हटाने की बात, रोजगार के संसाधन बनाने चाहिए. आप दिल्ली चुनाव जीत गए, आप खुशियां मना रहे हैं, बधाई हो आपको. लेकिन खुशियां मनाने के साथ साथ आप ये भी देखिए
कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आप सभी जगह 81 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, तो उनको रोजगार उपलब्ध क्यों नहीं हो किए जा रहे हैं, महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है, इसके विषय में कौन जनता को बताएगा और कौन जनता से बात करेगा? द्विवेदी जी, कल ही देवेंद्र फडणवीस जी ने फिर वो फ्लैशबैक में जाके 2019 में क्लियर कट उजागर किया कि धोखेबाजी आपके तरफ से हुआ था, कोई 2.5 साल के प्रॉमिस नहीं किए थे, बंद कमरे में अमित शाह से कोई बात नहीं हुआ था, अमित शाह क्लियर कट कहे थे कि 2.5 साल आपको नहीं देंगे, आपका सीएम आप चाहते हो तो हमको ये गठबंधन नहीं चाहिए। मगर उद्धव जी तब चुप बैठे, चुनाव जीतने के बाद साथ फिर उन्होंने अपने असली रूप दिखाकर दगाबाजी कर किस प्रकार से यानी खुलेआम कहा उन्होंने। तो प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी, सबसे बड़ी अगर कोई झूठी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी है, उनके प्रवक्ता है। नहीं, फडणवीस साहब खुद कहे, आज जो चुनाव दारूवाला साहब ने नहीं कहा, फडणवीस साहब ने अमित कहा। शाह जी ने, सर सुन लीजिए मेरी बात, अमित शाह जी ने जो पिछला चुनाव लड़ा गया 2024 में, जिसमें बीजेपी पुनः जीत के आई है, उसमें शिंदे को सबने कहा था मुख्यमंत्री हमारे ये हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। पहली बात, अमित शाह जी ने 2 दिन पहले चुनाव से कहा था जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद हम मीटिंग करके अपने उसका फैसला करेंगे। पहली बात तो 2000 इनको जब सरकार बनानी थी उद्धव जी के साथ में, तो इन्होंने अजीत दादा पवार को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? देखिए, सोचने समझने वाली बात है। और अमित शाह जी की किसी धनपति के सामने आपके शरद पवार जी की और अजीत दादा पवार की मीटिंग क्यों कराई गई, और उसके बाद अजीत दादा पवार को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? उसी देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं, मैंने बहुत डिबेट की उसमें, वो कह रहे थे साहब ये 56 आदमी जीत गया है, सबका समर्थन हमारे पास है, जो अंधेरी रात में सरकार बनाई गई थी और 80 घंटे बाद गिर गई थी। सर बड़ी पुरानी बात हो गई ना सर, किसने की? इसलिए किसने की? अगर 2.5 साल का, उसके बाद क्या हुआ? एक नाथ शिंदे को उनको 2.5 साल के लिए बनाना पड़ा कि नहीं बनाना पड़ा? उसके बाद 2.5 साल के लिए अगर उस फार्मूले को नहीं मानना चाह रहे थे और इन्होंने सरकार तोड़ी, संगठन तोड़ा और एक नाथ शिंदे को 105 विधायक होते हुए मुख्यमंत्री बनाया, अब 130 जीत गए, अब क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? देखिए, यही चीजें जो है ये जनता को हम बताएंगे, let's go to गोपाल तिवारी जी, ऐसी हैं जो जनता समझ नहीं पा रही है। इनका गणित, इनका खेल जो जनता नहीं समझ पा रही है, जिस वजह से जनता दिग्भ्रमित हो जाती है। 105 से उसमें मुख्यमंत्री क्यों बनाया? 132 से बने तो वापस क्यों मुख्यमंत्री बन गया? Right, let's go to गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, अब कांग्रेस का भविष्य क्या दिखता है आपको? जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, दिल्ली में तो 0 आया, 0 आया, लेकिन महाराष्ट्र में भी तकलीफ है ना सर। So what do you plan to do now? Because from whatever I know, Nana Patole Sahab has not even called for a meeting to conduct a postmortem of what took place. जैसे आप जैसे लोग हैं, जैसे आप हो गए, बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो गए, बाकी सब लोग हो गए, उनकी फीडबैक लेनी चाहिए थी ना सर, अभी तक नहीं आई है। गोपाल तिवारी जी, ये क्या चल रहा है सर? प्लीज बोलिए सर। आई होप आई एम रॉन्ग। If you are able to say that I am wrong, I'll be the happiest person in the world. बोलिए सर प्लीज। गोपाल जी, you're on mute sir. सर अनम्यूट करो अपने आप को, फोन को अनम्यूट करो सर, म्यूट का डबल बटन दबाइए ना। हेलो, हाँ ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। या प्लीज सर। अभी सबसे पहले तो अली जी ने अभी जो भी बताया बहुत ही अच्छी तरह से बातें रखी। आई एम सरप्राइज रियली। अगर हैज दैट मच ऑफ थिंकिंग, दैट थिंकिंग मस्ट है, मतलब उनकी बीजेपी की लीडरशिप जो है, मोदी जी, शाह जी, दे मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। अगर वो बोलते हैं मणिपुर के लिए अगर कोई सॉल्यूशन है तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी शुड कम फॉरवर्ड और टेल। सर कई बार बोला आपने, कभी एक अपोजिशन को लेके कोई मीटिंग ली क्या? नहीं ली। अभी सर आपने कभी कोई मीटिंग भी नहीं ली। और हमने पार्लियामेंट में देखो, पार्लियामेंट संसद में
अविश्वास प्रस्ताव आए तब मोदी जी मणिपुर पे मां बोले, वो भी आखिरी 1.5 घंटे के भाषण में आखिरी में बोले। तो ये बातें सर, ये आपके प्रवक्ता है, ये आपकी बीजेपी की छवि अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत अलग है और आपके नेता लोग को कभी सुनते नहीं। अभी आखिरी में जो मणिपुर के जो आज एक बार भी नहीं गए सर, ये क्या जिम्मेदारी नहीं है? आज अमेरिका के वहां से लोग कैसे स्थिति में आए, हथकड़ियां पहन के हम अमेरिका ने भेजा हमें, हमारे लोगों को, जनता को। कोलंबिया ने अपना जहाज भेजा और रिस्पेक्टफुली लेके आए उन्होंने। तो ये क्या बात है? आप ट्रम्प करते हो, कहीं पे भी आपका इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है। तो ना देश में हो रहा है ना देश के बाहर। हमारे भारतीय लोगों के साथ कुछ भी जस्टिस नहीं कर पाए आप सर। ये बहुत ही एक शर्मिंदगी बात है सर। 6.5 करोड़ बटालियन कुछ। गोपाल जी, रही बात महाराष्ट्र के ऑर्गेनाइजेशन की, तो जब तक हमने जो सवाल उठाया है उसका तो थोड़ा कुछ क्लैरिफाई होने दो, तो स्ट्रगल होने दो। मतलब जो कभी हमारे कार्यकर्ताओं को या लोगों के सामने एक बात रखी है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात कही है, और राजीव सरदेसाई जैसे कई पत्रकारों ने ट्वीट किया है कि 5 साल के बाद 5 महीने में 39 लाख वोट कहां से बढ़ गए, और क्या है ये? इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं क्या चुनाव आयोग पे, इलेक्शन कमीशन? गोपाल जी, क्या सनातन धर्म का अपमान करने का नतीजा गोपाल जी है ये? इन्होंने भी तो अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? क्या लोकतंत्र बचाने का ठेका अकेली कांग्रेस पार्टी ने लिया है? वो तो अपना एजेंडा लेके निस्वार्थ भाव से कांग्रेस लोगों के सामने जाएगी, लेकिन ये जो राष्ट्रीय संपत्ति की लूट हो रही है और जो गलत तरीके से सत्ता का इस्तेमाल करके सनातन धर्म के अपमान करना खड़गे साहब ने डाल रहे हैं और कांग्रेस ने, क्या ये सनातन धर्म का अपमान करने का नतीजा है कि आप महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, अब मिल्कीपुर हार गए? बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां गोपाल जी, जिनको सैलरी देते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तो है ना कोई। गोपाल जी, IAS IPS क्यों बने सर? कल डीके शिव कुमार जी नहीं क्या? डीके शिव कुमार जी कल महाकुंभ में जाके और डुबकी लगाए। क्या ये कांग्रेस में रिबेलियन चल रहा है कि हमने सनातन धर्म का कंटिन्यूस अपमान किया, राम मंदिर से लेके महाकुंभ से लेके राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, क्या इसके वजह से महाराष्ट्र गया, दिल्ली गया, मिल्कीपुर गया, तो क्या वो तो पहले गए थे, तो क्या सनातन धर्म का अपमान, ये पार्टी में एक रिबेलियन चल रहा है, नहीं होना चाहिए था? ये ज्यादा राम मंदिर का बॉयकॉट करना, महाकुंभ का आरोप लगाना, खड़गे साहब कहना कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी हटेगी, That was bad. तो क्या ये एक रिबेलियन? डीके शिव कुमार जाके खुलेआम डुबकी लगा दिया, वॉज इट अ रिबेलियन? क्या ये आप अब वो गैप को क्लोज अप करना चाहते हैं? मैं अभी बोला कर्नाटक के डीके शिव कुमार जी जाके स्नान किए, मतलब तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये बताने की चीज नहीं है ना सर। ये कई हमारे दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा करने गए थे, तो अपने अपने आस्था अपनी अपनी जगह है सर। खड़गे साहब ने ये कहा क्या डुबकी लगाने से गरीबी चली जाएगी? मतलब देखो, वो आस्था बताने से क्या होगा सर? आप सुनते ही नहीं हैं। जो रोजगार चाहिए, महंगाई से गोपाल तिवारी जी, लव यू वेरी मच, ये सब बातें है, उसको क्या, उसके प्रति गोपाल तिवारी जी, वी लव यू वेरी मच। कैन यू प्लीज देखा लिसन? होगा 1952 में जब पंडित नेहरू जी जब 57, आए, उन्होंने 57 पूरा कुंभ की इंतजाम देखा था सर। 1952 में 57, हाँ, उसी समय जी। बट वन थिंग आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय अली दारूवाला साहब, संजय द्विवेदी जी, गोपाल तिवारी जी, जरा ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। हैव यू सीन दैट फुटेज ऑफ नेहरू जी डाइविंग इनटू द गंगा? देखा आपने? सर, व्हाट अ फिट मैन, ओ गॉड, ही वाज अमेजिंग सर। वो जो शीर्षासन करते थे ना, फोटोग्राफ है क्या जबरदस्त सर, उसका मानना पड़ेगा। देखो, उसका मार्केटिंग करने के लिए हमें इतना छछोरा सर, उस वक्त अलग था सर। आजकल हर चीज की मार्केटिंग होती है, क्या करोगे? अच्छा, बाय द वे, दारूवाला साहब, आप मणिपुर की बात कर रहे थे ना, पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ने ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन था, उसका आंसर दिया है
कि 11,288 11,288 acres of land in Manipur is under poppy cultivation. Opium and poppy cultivation, which means you produce opium and you produce cocaine. So, आप और एक और चीज आपको बता दूं, जहां मणिपुर है ना सर, इस तरफ बर्मा है, इस तरफ कंपूचिया है, यानी जिसको कंबोडिया बोला करते थे हम, और ऊपर चाइना है। ये तीनों के तीनों देश जो हैं, वहां पर जितने भी स्मगलर्स हैं, द बिगेस्ट स्मगलर्स आर इन द शान हिल्स इन बर्मा, इन म्यांमार। सर, आपको बर्मा एंटर करना ही पड़ेगा। मैं आपको अभी बोल देता हूं, उसके बिना कुछ नहीं होगा सर। You will have to send the army into Myanmar. Without it, nothing will happen. They will not allow this problem to go away. I am saying so again, right here. इसके पहले मैंने कभी नहीं बोला, आज मैं बोल रहा हूं सर। दारूवाला साहब, द्विवेदी जी और गोपाल तिवारी साहब, इंटरनली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। Let me tell you very frankly, there are too many foreign forces at work. And do you know what is the amount that people are earning from there? आप जानना चाहेंगे सर? I wish cocaine could be, you know, if you legalized the cocaine trade, you would earn about $2 trillion. सर, $2 billion का ट्रेड है वहां से, सिर्फ मणिपुर से। The second largest in the whole world. Yes. Now I want to come to Daruvala Sahab. Daruvala Sahab, महाराष्ट्र अथा थामणार नहीं देवेंद्र फडणवीस जी, और जो प्रॉमिस उन्होंने गढ़चिरौली के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन द नक्सलाइट हिट गढ़चिरौली, उन्होंने अनाउंस किया कि गढ़चिरौली में मैं एयरपोर्ट बना रहा हूं। एयरपोर्ट इज कमिंग इन अ क्लोज, इन 1-2 साल में एयरपोर्ट बनेगा वहां पर। तो हाउ डू यू सी दैट? और लगातार जो अटल सेतु, 3 एयरपोर्ट, 3 लगातार, हाउ डू यू सी द डेवलपमेंट? महाराष्ट्र अथा थामणार नहीं इज रियलिटी ना, सच्चाई है। Pradeep sir, when he said Maharashtra Atta Thamnar Nai, he became the Guardian Minister of Gadchiroli. 83, sir, last night 83 militants have been gunned down. The number totally has crossed 200 militants that have been gunned down. They are taking Gadchiroli as a priority. Devendra Fadnavis ji could have become the Guardian Minister of Bombay, any creamy city, but he chose Gadchiroli. This is what the original Sanatani man will try to bring up his land up, remove दुष्टीकरण। जैसे तुष्टीकरण की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। Urban Naxals को we are going to smoke them out of their holes. I hope so. Now what we are going to do, I'll tell you sir, I'll tell you. Now we have won most of the states, we have come back to power. Now we should be having debates as to what we need to do. Where are we falling short? Like very beautifully you brought up Manipur issue. You have got such beautiful information of the land cultivated over there, which is under poppy. What are the surroundings? What is happening from the neighboring states? What our country, what our youth, जिसे एक जमाने में एजुकेशन का माहिर घर कहा जाता था, वो अब ड्रग्स का माहिर घर हो रहा है सर। इसके ऊपर हमें काम करना है। हमारे पॉलिटिशियंस को जॉइंटली एक एफर्ट से लाकर ये जहाँ पे हमारी जो एक नस्ल वाहियात हो रही है उसको, और you could legalize drugs. ये जो पॉर्न का जो दिख रहा है, एक जो ये रील्स, ये जो सोशल मीडिया से जो एक हमारी यंग यूथ जो सर वाया जा रही है ना, उससे कहते हैं which our youth is getting destroyed. We need to work over there. Sir, I'll just tell you and you also need to change the law. Sorry sir, you brought that up. एक second. Daruvala sahab, you also need to change the law. Let me tell you this, the NDPS Act was brought in by Rajiv Gandhi. राजीव गांधी जी को गलत तरीके से एडवाइस किया गया। वहां पर जो एक शख्स थे, पता नहीं क्या थे सर, पूरे बनारस में भांग मिलती है, लाइसेंस भांग मिलती है। आप भी जानते हैं सर, द्विवेदी जी, गोपाल तिवारी जी, आप भी जानते होंगे। You know, possessing bhang also is under the NDPS Act. Just give me 1 second to finish. Why 1 second? You take a minute, sir. You take 5 minutes. Please go ahead. I'll tell you why. I'll tell you. No, I lost the link. What I was trying to tell you. See, over here, beyond politics, getting above the board, over here, Dwivedi ji है, Gopal ji है. एक इनसे मैं बताना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है इंडिया में जिसे भोरा जमात कहते हैं। भोरा सर, उनके धर्मगुरु ने कहा अपने धर्म माध्यम से, क्या जितने भी यूथ है, 15 साल के जो बच्चे हैं, 15 साल की जब तक वो होते नहीं, उनके हाथ में जो स्मार्टफोन है ना, ये निकाल दो। ये धर्मगुरु ने उसको अपील किया। अगर एक
एक beyond politics, beyond I want to say beyond the government, it is our social responsibility. अगर हर एक जमात, lot of disturbance, एक जमात, एक कास्ट, एक क्रीड अपने धर्म गुरु के कहकर अगर यूथ को, नस्ल को हम बचाते हैं, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये जो एडिक्शन का जो है, एडिक्शन तो खैर कितना भी कहो, धर्मगुरु तो कोई सुनने वाला नहीं है. तो इससे एक अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम इसको कर्व कर सकते तो एटलीस्ट हमारी आने वाली नस्ल ये सब तुष्टिकरण से, So that you got as द्विवेदी जी would say, दारूवाला साहब आपका सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों द्विवेदी जी, दोनों महाब्राह्मण बैठे हैं मेरे साथ सामने, आपके द्विवेदी जी और तिवारी जी दोनों, और वो दोनों कहेंगे यू वांट टू प्रोटेक्ट द यूथ फ्रॉम ड्रग्स, गिव देम जॉब्स, क्रिएट जॉब्स, नौकरियां दो सर. आपने 2-2 करोड़ नौकरियां प्रॉमिस करी थी हर साल की, चल 10 लाख ही दे दो हर साल की, कोई ड्रग में नहीं जाएगा फिर. जी तिवारी जी बोलिए सर, तिवारी जी कुछ बोल रहे थे. वजह से जो घरों के अंदर कैंसर घुसा है सर, उसे हमें कर्व करना चाहिए. सर मैं कह रहा हूं आपको पॉलिटिक्स, सर आपको जानकर के ये खुशी होगी आप तीनों को, इसमें सबसे ज्यादा काम प्रदीप नाम्बियार जी ने किया. आपको मालूम है सर, समीर वानखड़े ने जो 312 के 315 बड़े बड़े ड्रग सुरमाओं को अरेस्ट किया, उसमें से 152 की लिस्ट जो थी वो नेशन नाउ की थी. इट इज नेशन नाउ under the leadership of Pradeep Nambiar ji that was actually able to identify all these drug suppliers, pushers, distributors and everybody else. And let me also state over here. Well done, sir. Well done. And let me also state over here, sir. It is only Sameer Wankhede who took action. Nobody else did. I'm putting that on record. जी गोपाल तिवारी जी कुछ बोलने वाले थे, आप बोलिए. सर अभी इन्होंने कहा कि गढ़चिरौली के बारे में जी तो अली भाई ने, और कहा बहुत अच्छी तारीफ की उन्होंने कि ऑनरेबल सीएम देवेंद्र फडणवीस would have become the गार्डियन मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे एंड ऑल, लेकिन उन्होंने ये गढ़चिरौली का गार्डियन मिनिस्टर बना. और योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, मैं कहता हूँ जो भी महाराष्ट्र के सीएम और होम मिनिस्टर है वही गढ़चिरौली के गार्डियन मिनिस्टर रहते सर. पहले आर पाटिल देखो, उन्होंने उस जमाने में गढ़चिरौली के जो नक्सलाइट एरिया है उसके थे. उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी थे, और आप रिकॉर्ड देखो, ये सब लोग गढ़चिरौली के गार्डियन मिनिस्टर थे. और उस समय पर्टिकुलर पी चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे और आर पाटिल जो महाराष्ट्र के, उस समय कुछ जो बुनियादी बातें रखी है सर, उनका क्या है, उनको रोजगार चाहिए नक्सलाइट को. दे आर अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट. उनको आपने कहा था कि कश्मीर में भी हम रोजगार देंगे, लोगों के हाथ में कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, टैब देंगे, उनके हाथ में जो पत्थर है वो नहीं, मतलब पत्थर जाके उनके हाथ. तो ये इस बात पे करना चाहिए. इसके ऊपर कितना काम हुआ, अगर वैसा रहता तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बाकायदा कुछ बातें रखी होती. लेकिन ये दिस रूलिंग पार्टी couldn't do that. और अगर अदरवाइज उन्होंने आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता सकते थे. सेकंड थिंग, जो आपने ड्रग बोला, उन्होंने अच्छी बात बोली. पुणे में जो ड्रग और क्राइम रेट बना है ना सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये लास्ट 1-1.5 साल से ज्यादा बना है. और जो ड्रग पकड़ा गया है, कुंद्रा एयरपोर्ट तो गुजरात में है, वहां से इतना ड्रग पकड़ा जाता है, और उसका कुछ वो जो भी डिस्ट्रॉय करते हैं ड्रग, उसके बारे में कहाँ कोई देखा है आपने? कोई लाइव या मीडिया के सामने वो खत्म किया ड्रग, जलाया उसको ड्रग को, या कोई वेबसाइट पे बताया क्या ये ड्रग हम बिल्कुल डैमेज कर रहे करके? ये कुछ नहीं हुआ है. ये ड्रग जाता कहाँ है सर? सिर्फ आंकड़े आते हैं, कुंद्रा ड्रग, वहां पे गुजरात में इतना ड्रग पकड़ा गया, उतना ड्रग पकड़ा गया. 10 साल से तो आपकी सरकार है केंद्र में भी, तो कौन, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? और पुणे में जैसे सिटी में इतना ड्रग आ कहाँ रहा है सर? सर लास्ट टाइम 20,000 करोड़ के ड्रग पकड़े गए थे. हाँ, तो उनका हुआ क्या किसी को मालूम नहीं है. वो सर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है. आप बिल्कुल रिकॉर्ड रखा है क्या? तो उसके सामने किसकी फिल्म, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन. उसका कुछ
अरे भाई उसको डिस्ट्रॉय करते समय कुछ नहीं है कुछ। आपने बताया लोगों के अरे सर सामने, सर्टिफिकेशन चाहिए होती है आप कर डिस्ट्रक्शन रहे के हैं। लिए। ये ड्रग किसकी जिम्मेदारी है? ये सर इट ड्रग हैज टू इतना बी डन पकड़ा इन फ्रंट जाता ऑफ है अ तो डिस्ट्रिक्ट जाता कहाँ है मैजिस्ट्रेट। वो? तो आपका एक्यूजेशन है इट इज कमिंग बैक इन द मार्केट, दिस जो भी कॉन्फिस्केटेड ड्रग्स है वो 100% गोपाल जी आप फिर कह रहे हैं कहाँ कि से आता मार्केट है? में वापस आ तो रहा कहाँ है। से आता है सर? ये सीधी बात है। It's a huge job. कहाँ है होम Yes. मिनिस्टर, ईडी, सीबीआई, जो But भी we don't know- है, किसके but we साथ don't know when they इन्हीं were के पास destroyed. है सब एजेंसी। सर देयर इज नो अगर कोई सर्टिफिकेट। ड्रग पकड़ा गोपाल जाता जी है तो वो ड्रग को अगर आप खत्म करना चाहते हो, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन रहना चाहिए कि लोगों के सामने ये बात जाए कि सर, हमने एक ड्रग प्रोसीजर जला होता दिया है। हमने करके। कहाँ गोपाल है जी ड्रग? एक प्रोसीजर होता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट रहता है, बाकी 10-15 विटनेस होते हैं वगैरह, और वो पूरा तो सर्टिफाई होता है प्रॉपरली। तो एकदम वो नहीं हुआ। कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। हैपन सर, नथिंग वाज इट इज नॉट हैपेंड। You know, Dwivedi ji, Somnath Suryavanshi death under police custody, आपके पार्टी ने हंगामा कर दिया जब 10 ने खुलेआम सोमनाथ जी के फैमिली को कहा कि पुलिस को माफ कीजिए। संजय राउत ने सबसे ज्यादा उठाया। तो अगर सोमनाथ सूर्यवंशी के केस में पुलिस को माफी देने के लिए फैमिली को रिक्वेस्ट किया, संजय राउत ने कहा तो बीड़ मर्डर केस में भी उसको भी माफी करो, सबको माफी दे दो आप। तो क्या ये स्टैंड सही है द्विवेदी जी? एक ही आपके पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया, भले राहुल गांधी जी ने खुद वहां पर सोमनाथ सूर्यवंशी उसी क्षेत्र में जाके विजिट किया था परभणी में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? 10 एक बीजेपी का एमएलए वो कह रहा है कि माफ कर दो, और फिर किस प्रकार से क्या हो रहा है द्विवेदी जी? देखिए प्रदीप जी, बजाज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने या गृह मंत्री थे, वो जिस तरह से वहां पे कानून व्यवस्था खराब हुई, बाबा सिद्दीकी इनको भाई त्रिणी सुरक्षा मिली थी, उनकी हत्या हो जाती है, सरेआम हत्या हो जाती है, और तमाम जो आपने चीजें बताई हैं, अगर इनका अभी तक कोई धनंजय मुंडे का नाम आ रहा है, क्या उस पर कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई किसी को नहीं पता। अगर इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होंगी और उनके परिवार में दबाव डाला जाएगा, निश्चित है कि परिवार में दबाव डाला गया होगा कि आप इस तरह की बातें करिए। तो इस तरह की बात, हम तो सबसे पहले बड़ी बात तो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के माध्यम से, कानून जो महाराष्ट्र की हमारी जो पुलिस है उसके माध्यम से जो ओरिजिन, जो सही हमारे जो हैं, जिन्होंने इस तरह की कार्य कर रहे हैं, उनका नाम सरेआम आना चाहिए। अगर आपने छगन भुजबल को, आपने अनिल देशमुख को या तमाम लोगों को आपने जेल में डलवाया एक आरोप लगा के, तो अगर जैसे आपने एक बलात्कार के दोषी थे मंत्री जी, उनके खिलाफ आपने मोर्चा निकाला, आपकी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्तियों ने निकाला, उनको हटाया गया था, लेकिन खैर वो आपके यहाँ मंत्री फिर बने हुए, कोई बात नहीं, वो तो आपकी अपनी इच्छा है। तो इस तरह की अगर कोई बात की जा रही है तो आप ऐसे मंत्री को क्यों नहीं हटा के और कोई जांच करते हैं? जो भी हत्याएं हो रही है कि अंडर में हत्याएं हो रही है या बाहर हत्याएं हो रही है, तो अगर इस तरह की चीजें पनपती रहेंगी, चलती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी, तो निश्चित महाराष्ट्र जनता का मनोबल डाउन होगा, उनका पुलिस से विश्वास हटेगा। We don't have a tradition in Indian law, as far as I know. एक सेकंड द्विवेदी जी, एक सेकंड। और वो as far as गोपाल तिवारी जी, एक सेकंड। In Indian law, even in the new BNS which has come, उसके प्रति न्याय नहीं। अरे सर एक सेकंड सर, के आदमी सामने वाले को माफ कर दे, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है। भारतीय कानून इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। Let's be very clear. बट गोपाल जी, राहुल गांधी जी खुद, सोमनाथ सूर्यवंशी खुद वहां पर प्रेजेंट थे फैमिली से मिलने के लिए, और कल 10 के बोलने के बाद वो मोर्चा जो लॉन्ग मार्च था वो थाम दिया, स्टॉप कर दिया, वो क्लोज कर दिया। तो एक्चुअली आपको तो हंगामा रास्ते पर उतरना चाहिए, राहुल जी खुद वहां पर विजिट किए फैमिली को। गोपाल जी सर, ये पुलिस कस्टोडियन डेथ है और ये महाराष्ट्र में दूसरी है सर। अभी इनका गवर्नमेंट बनने के बाद अक्षय शिंदे का क्या हुआ सर? अक्षय शिंदे के ऊपर तो अभी परसों कोर्ट ने ऐतराज जताया, अभी 3 दिन पहले की कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई कि अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दायर किया।
वो 5 लोगों के साथ जिसके अक्षय शिंदे जितने वो छोटी बच्ची के ऊपर अत्याचार किया, उसके पीछे वो आपटे था, उसके सीसीटीवी कैमरे जो हटाए गए स्कूल के, वो आपटे नहीं मिल रहा था और वो सब सच बाहर आता था, तो उसको अक्षय शिंदे को मरवा दिया इन्होंने सर। व्हाट ना, क्या क्या हो रहा है सर ये राज में? अली दारूवाला साहब क्या हो रहा है? गोपाल जी का आरोप है। अली दारूवाला साहब क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? द्विवेदी जी पूछ रहे हैं आपसे क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? भीड़ में आप सिर्फ बोलते हैं 3 इंक्वायरी लगा दिया, मगर मुंडे जी अभी तक इस्तीफा नहीं दिए। सोमनाथ सूर्यवंशी वो एकदम पुलिस कस्टडी कस्टोडियल डेथ का एक ऐतिहासिक केस है, वहां पर 10 जाके रोक लेते, लॉन्ग मार्च रोक लेते। व्हाट्स हैपनिंग? दोनों पूछ रहे हैं आपसे दारूवाला साहब। एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करने के लिए लगे सर, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सत्ता के लालच में बने बैठे हैं अजीत दादा, और वो कहते हैं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो हम सपोर्ट निकालेंगे, शायद ऐसी बात है, तो कोई कुछ नहीं ये कर रहा है, उनके कार्यकर्ताओं तक न्याय नहीं दे पा रहे ये लोग। दारूवाला साहब Exactly. Dhananjay Munde thing, Ajit Pawar has taken the lead. He said, I am supporting Dhananjay Munde, sir. Until and unless he is convicted, there is some court orders, something is powerful presented, then it can be anybody, then nobody can save even Dhananjay Munde. But right now, he is honorable minister. We have not found anything against him. And this are just claims made by opposition to pull him down. That's all I'll say. Sir, claims have been made by the BJP. Likewise, how he is. Sir, how has it been made by the opposition? This is unfair. Sir, the claim has been made by the BJP. Sudhir Das, your Sudhir Das has made the claim. आपका एमएलए है सर बीजेपी का, उसने क्लेम किया है सर। I'll tell you one thing. सुरेश दास जी जो वहाँ के लोकल इनकी एनमिटी है, वो क्या हो रहा है ओपनली वहाँ पर, we do not know. I'm saying, Rajiv sir, Pradeep sir, just let us wait and watch over there. And about sir, Mr. Devendra Fadnavis is being embarrassed. Police encounter. Daruwala sahab, I know Devendra Fadnavis. I am sure he must be mortified at what is happening. He should rightfully, Mr. Munde should rightfully resign, very frankly speaking, and save everybody the embarrassment of having him in the cabinet. बोलिए गोपाल जी, बोलिए। हाँ, मैं ये एक ही कहना चाहता हूँ, अगर हमारे होम मिनिस्टर और सीएम जब ऐसी बात कहते हैं तो दुख होता है कि धनंजय मुंडे का जो भी डिसीजन लेना है वो अजीत दादा लेंगे। व्हाट सर, अगर आप होम मिनिस्टर हो, कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि नहीं आपकी? अगर पब्लिक डोमेन से सब जगह से उनके ऊपर आरोप हो रहा है, तो आप अगर ये बांट दिया क्या कि एकनाथ शिंदे के जो भी मिनिस्टर है, जो भी क्राइम करे, जो भी करे वो एकनाथ शिंदे देखेंगे, एनसीपी के जो भी मिनिस्टर है, जो भी क्राइम करे, जो भी उनके सामने अगर प्रूफ भी लेके आए तो उनको बोलेंगे वो देखेंगे। ये तो नहीं होता ना सर। तो आप आपका एज अ सीएम करके, आप एज अ होम मिनिस्टर करके आप आपका राइट, आपका जो हक है, आपके जो ड्यूटी है वो एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे? द्विवेदी जी कुछ कहना चाहते हैं? करना चाहिए ना, ये बोल के काम थोड़ी चलेगा। द्विवेदी जी I agree with you sir. गोपाल तिवारी जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। द्विवेदी जी कुछ बोल रहे थे आप? देखिए 2013 महाकुंभ में स्टेशन में भगदड़ मच गई थी सर। जी, रेलवे स्टेशन पे। जी करेक्ट। उसकी वजह से जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब जानकार हैं, लेकिन इतनी बड़ी भगदड़ हमारे महाकुंभ में हुई, किसी ने भी जिम्मेदारी न लेकर उसका लीकी पोतने का काम किया सर। देखिए सनातन धर्म अभी तक असली आंकड़ा नहीं आया उसका। अगर देश को मानते हैं, तो अगर हम समाज को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो इस तरह घटनाएं अगर हो तो उसकी जिम्मेदारी भी लेने में सर उसको छुपाना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। करेक्ट, इसको छुपाना नहीं चाहिए। इसके बारे में ये सोचना चाहिए कि हम इसको आगे चल के ना हो। सर आप वो 30 का जो आंकड़ा मानते हैं उसको तुरंत कर दे रहे हैं द्विवेदी जी, जो 30 का आंकड़ा दिया है वो आप मानते हैं क्या? आए दिन पीक पे भी जो बने हुए 50 पुल बने हुए हैं उनको आए दिन बंद कर देते हैं, जिसकी वजह 7 से 8 किलोमीटर पैदल वालों चलने के लिए अलग हो जाता है। अब वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ अलग हो रहा है, जो वीआईपी आ रहा है उसका ट्रीटमेंट अलग, जो बेचारी गरीब जनता है, हिंदू जनता है, उसका ट्रीटमेंट अलग हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीजें जो है
वो इस तरह से बनानी चाहिए कि जिससे किसी बिल्कुल, आम जनता noted. को At least the जो truth should नहाने come वाले out, हमारे sir. कुंभ में है उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दारूवाला और साहब, पीने don't you के agree कुंभ with that? आए दिन बंद करने की जो प्रक्रिया चलती है दारूवाला वो साहब। प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। दारूवाला साहब, जो अभी द्विवेदी जी ने कहा और तिवारी जी भी वही कह रहे थे और बाकी सारी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में लोग वही कह रहे थे कि सर सच बोलिए ना, अगर कोई त्रासदी हुई है तो हुई है ना सर। इफ पीपल हैव डाइड, दे हैव डाइड, लेट देयर बी एन इंक्वायरी, लेट द ट्रूथ कम आउट, सच सामने आइए। जब पंडित नेहरू के वक्त भी जब कुंभ था तब भी 80 लोग मरे थे सर, भगदड़ में। और हर कुंभ में होता है, हर महाकुंभ में होता ही होता है। कभी दो अखाड़ों के बीच में लड़ाई हो जाती है, वो भौंक देते हैं अपने त्रिशूल एक दूसरे के से पेट फिर में, निकल गए। बहुत कुछ हो जाता है बहुत। लेकिन इसके पहले कोई छुपाता नहीं था सर। दारूवाला साहब, आई पुट इट टू यू, नोबडी, ऑल द गवर्नमेंट्स प्रायर टू दिस, इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट्स, they never used to hide anything sir, they never used to try and shove anything under the carpet, कोई इसको छुपाता नहीं था। दारूवाला साहब, आपको लगता नहीं है कि वास्तविकता में कितने लोग मरे हैं वहां पे, कितने लोग असल में इंजर्ड हैं? और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, द्विवेदी जी और तिवारी जी और दारूवाला साहब, वहां आसपास जो मस्जिद है, लोग जख्मियों को वहां पर लेकर के गए, वहां पर उनकी ट्रीटमेंट हुई, और वहां के जो मुसलमान हैं और ईसाई हैं उन लोगों ने उनको खाना दिया, ब्लैंकेट दिया, ना जाने क्या कुछ दिया। आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट इन। दारूवाला साहब बोलिए प्लीज। बिल्कुल सही है। दारूवाला साहब बोलिए प्लीज। एग्जैक्टली, नो, इट्स अ वेलकम स्टेटमेंट जो द्विवेदी जी ने कहा, मैं इसकी सराहना करता हूँ, वेलकम करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल सच कहा है, ट्रूथ शुड कम आउट, इफ नॉट टुडे टुमारो इट विल कम आउट, यू कैन नॉट पुट इट अंडर द कार्पेट एज यू सेड, मगर इट इज द फर्स्ट टाइम इन 144 इयर्स। इसके अंदर कुछ खामियां हुई है, यहाँ पे कुछ लकूनास थे, यहाँ पे कुछ शॉर्टफॉल्स थे, बेशक हुआ है। डेथ मींस इन सच अ मैग्नीट्यूड where at least I expected some 40 to 50 crores of people still are going, and we need to take VIP का पूरा मूवमेंट बंद कर दिया है। वहाँ पर जितना भी हो सकता, जितनी भी ताकत, जितनी भी यंत्रणा हमें वहाँ पे एक्टिवेट करना है। मगर एक बात है, जो हुआ वो हुआ, उसके लिए तो बहुत ज्यादा खेद है, मगर जो लोग वहाँ से आ रहे, जिसको मैं मिल रहा हूँ, वो लोग तारीफ भी कर रहे सब। जहाँ पर एक बार चीज हुआ, बाकी तरफ वो भी बाकी तरफ तारीफ ही हुई है। मीन्स इसका ऐसा कोई हमारे सरकार को एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या कोई एक्सपीरियंस नहीं है समथिंग ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो सपनों में, भविष्य में हमने ना सोचा था, ना अभी इसकी आने वाली पीढ़ी देखेंगे। आई थिंक दारूवाला साहब, वी एक्सपेक्ट अबाउट 58 करोड़ पीपल टू कम देयर। आखिर में 26 फरवरी तक 58 करोड़ लोग आ जाएंगे। The world's largest congregation, the whole world. Half the population of this country is going there. Things are going to happen. We need to be very. Are you going? His suggestion, द्विवेदी जी की जो suggestion है, गोपाल तिवारी जी का suggestion, सर आंखों पे, we need to pull up our socks, be vigilant, get in more force, more help. If need be, we need to take help from others. सर, आप जा रहे हैं महाकुंभ के? And everybody across, like you said, Muslims have helped. And Christians. And Christians also. And Christians. There's a church over there also. सर, कोविड में कोई भी श्रेय नहीं ले सकता। ये कोविड से जो भारत देश निकला है ना सर, ये एक समूह, एक जो कम्युनिटी ने एक में को जो मदद की ना सर, गाँव Sir, we should all celebrate that. किया, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए सर। जो चला है ना सर, मैं आपको कहता हूँ राजीव जी, दुरुस्त बात। नॉट एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, एक जो भावना है यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों में जो एक में को भाग के हेल्प करने की जो भावना है ना सर, ये इट यू कैन नॉट कंपेयर इट राजीव सर। It is not there anywhere else in the world. It is there only in India. सर, हमें याद है 26 जुलाई, अरे हमें याद है सर 26 जुलाई 2005 में हम लोग गोरेगांव का स्टूडियो था हमारा सारा का, वहां से चलता हुआ मुझे जू तक आना था। अरे रास्ते में लोगों ने चाय पिलाई, किसी ने बिस्किट खिलाए, किसी ने पता नहीं क्या, इतने पानी में हम चल के आए। और आप मानेंगे, हर एक की मदद करिए सर, ये जज्बा है, हिंदुस्तान का जज्बा है सर ये। बट आरएसएस एंड मोदी जी हमेशा वही कहते हैं 140 करोड़ लोगों को, कभी डिविजन्स नहीं था। ये पार्टी का विजिटिंग कार्ड घर पे रख के निकलते सर, मेरी बात को आप मानिए सर। तो सर मोदी जी 13 करोड़ गायब भी कर देते हैं। बिफोर सर 153 करोड़ है सर हम। 830 नाउ,
I can सर assure वोटर्स लिस्ट से गायब कर देते we हैं क्या? क्या need to है? be more vigilant. We need to be more vigilant. Right. And we will take care. We will try our level. Gentlemen, thank you अगर very कोई much. It's been a suggestion great है तो pleasure please talking to दीजिए, you. क्योंकि यहाँ पे every life is important. And Daruwala साहब, I'll hold you to your word. You are coming to the studio. Thank you very much. Done, sir. Done. Right. और आप मिठाई लेके आ रहे हैं साथ में. जय गोपाल जी आप लोग भी आएंगे, वंदे त्रिवेदी साहब आप भी आएंगे. Thank you, Rajiv sir. Thank you very much, gentlemen. Thank गोपाल you. sir. हाँ सर, यहाँ पर आपको कॉफी बहुत अच्छी मिलेगी. ये पक्का. चाय भी बहुत अच्छी मिलती है. शुभकामनाएं. Thank you, gentlemen. हर हर महादेव. Thank you. हर 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 महादेव. महादेव. हर हर महादेव. जय हिंदू. हर हर महादेव. हर हर महादेव. एक बात रखनी थी तो ठीक है, चलो सर अगली बार सर, अगली बार बहुत लंबा हो जाएगा सर. बच्चों को घर भी जाना है सर, प्रोडक्शन टीम को घर भी जाना है ना सर. थैंक यू. ग्रेट प्लेजर जेंटलमैन. थैंक यू वेरी मच द्विवेदी जी. सो नाइस ऑफ यू. Pradeep ji, that was a nice discussion. Very, very nice discussion. They were very perfect. Nobody, intruded on. But I am our very space surprised that Gopal Tiwari ji did not mention the fact that there are about 20 cases in Delhi where candidates of the BJP were found to be distributing money, shawls, etc., which have been caught on camera. Which are all this stuff is there on Instagram and elsewhere. So I am very surprised Gopal Tiwari ji didn't mention it. And the other thing also which makes me feel really truly sad, Pradeep ji, how can you celebrate another party's defeat when you have won nothing? आपने zero, you've come back with zero and you are celebrating. आप बंगला कर रहे हैं Sir, केजरीवाल हार गया. Are we seeing the breakup of the India Alliance? इंडिया अलायंस is over. Because पूरे alliance एक तरफ है और कांग्रेस एक तरफ. सर कांग्रेस अब अकेली चलेगी. And Congress is rejoicing the very fact that आपने सब लोग ताकत लगा दिए फिर भी जीत नहीं पाए. तो कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, आपका सजेशन ये है, आप इस बात की हिंट कर रहे हैं, शायद इस बात का आप हिंट कर रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस अकेले और बाकी इंडिया अलायंस कांग्रेस के अलावा माइनस द कांग्रेस, which by the way was the suggestion of Mamata Banerjee 2 years ago, कि we should fight minus the Congress. Sir, and she did. दिल्ली में जिस प्रकार से परिवारवाद वाले कांग्रेस के हर चीज को पकड़ कर रखे हैं जी, ये अजय माकन का चेहरा कितने इलेक्शन से देख रहे हैं हम लोग. जब भी दिल्ली के इलेक्शन सर मेरे मित्र हैं सर, ऐसा मत बोलिए, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं. What I'm trying to say, if the संगठन को आपको मजबूत करना है, by force you have to take a strong stand. कि भाई आप बहुत हो गए, आपको हटिए, हम एक नया टीम पैदा करते हैं जो will go because Congress has a base across the country. प्रदीप जी, there is no team. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मोदी साहब हिंद कर रहे हैं आपको कि परिवारवाद दिख ही रहा है, वही चेहरे हर इलेक्शन में, वही चेहरे कांग्रेस के हर जगह पे, हर स्टेट में सर, हर स्टेट में. और क्या होता है, वही परिवारवादी चेहरे जो हैं जब मुश्किल में होते हैं तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं. ये एकनाथ शिंदे के पास चले जाते हैं, जैसे मिलिंद देवरा साहब शिंदे साहब के पास चले गए, अशोक चौहान साहब कांग्रेस में चले गए, सॉरी उसमें बीजेपी में चले गए. मतलब एंड उनको स्थान भी मिल जाता है राज्यसभा, ये है वो इंस्टेंटली राज्यसभा मिल जाता है सर. ये बढ़िया है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, रियली एंड ट्रूली लवली, व्हिच इज व्हाई आई रियली फील फॉर शाइना एनसी. शी फॉट अ वेरी गुड इलेक्शन बाय द वे. बहुत जबरदस्त इलेक्शन लड़ा उन्होंने. एंड शी इज नाउ इन एकनाथ शिंदे. एकनाथ शिंदे की पार्टी में है सर, शिवसेना में. उनको और इफेक्टिवली उनको बीजेपी से निकाल दिया. अशोक चौहान वहां हारे थे, he couldn't win for a Congress ticket. आप उसको उनको राज्यसभा में भेज दिए. And what is the utility? So rightfully speaking, शाइना एनसी को भी भेजना चाहिए राज्यसभा में, very frankly, because she has served the BJP very, very loyally. I still remember she used to come on the RKB show and defend Mr. Modi, tooth and nail against the attacks from Alec Padamsee on one side and Tushar Gandhi on the other, and she would stand her ground. I have the greatest respect for her. She is really and truly a girl with, a backbone of steel. It's absolutely wonderful. She survived it. She's really done well for herself. Yes. Oh, absolutely, absolutely. She doesn't get phased. My friend Nana Churasma's daughter. That, by the way, is the only award I've ever accepted. The Giants International Award. Otherwise, I usually refuse awards. It is Shaina NC who told me that if you don't accept this award, and if you are not there on this particular date to receive it, I will never talk to you again.
Otherwise, I never accept awards, any awards, anyway, because I'm not in a competition with my fellow journalists. So it's very, very silly to, you know, to have awards and stuff like that. आप देखें प्रदीप जी, आज की तारीख में जो मोदी जी ने जिस प्रकार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड्स जो उन्होंने खोल दिए पकड़ के, और ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने असल में कुछ अचीव किया है. Earlier, it used to be this one small little coterie in Delhi, and all the awards used to be distributed among them. Let us give them without any. मतलब shocking. These new people after Modi ji, I think they have earned the awards. Yes. They have worked towards it. And that is why I admire Modi ji. Let me tell you this. मैं सबके सामने बोल रहा हूँ साहब, खुलेआम बोल रहा हूँ. Modi broke the Lutyens Bungalow Zone Club monopoly. He broke it, destroyed it. As a result of which they all hate him. And as long as they continue to hate him, Mr. Modi will continue to win. That's what's going to happen. I hope they don't start supporting him. If they start supporting him, Modi ji is in trouble. Well, that's just about it in tonight's show. And congratulations to the BJP for winning Delhi after 27 years. And congratulations to the BJP for winning Milkipur. Milkipur भी जीते आप, दिल्ली भी जीते. दिल्ली में आपकी सिर्फ 48 सीटें आई हैं. दोनों जबरदस्त है. अयोध्या आप हारे, अवधेश जी वहाँ जो सीट वेकेट सर किए, सर उसके बारे में हमारी बातचीत हुई थी. Yes. अगर आपको याद हो कि लोकसभा सीट में क्या होता है कि अगर एक भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वन साइडेड वोट आपको पड़ जाता है, सो फाइनल टैली में दैट काउंट्स फॉर हेल ऑफ अ लॉट. लेकिन असेंबली में दैट इज ओनली वन असेंबली सेगमेंट, जिसकी वजह से this was held by the Samajwadi Party. That gentleman, Avdesh ji was there. He won, and now he's won the Lok Sabha there. And then to lose them. समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि वहां के मिल्कीपुर के जो तीन पुलिस स्टेशन हैं, उनके सबके कार्यकर्ताओं को सबको बंद कर दिया गया. इलेक्शन ऑफिसर इतना अच्छा आदमी था कि वो भी बोला जैसे जाके वोट करो. तो आपके जो पार्टी के एक्टिविस्ट जो अंदर है, पोलिंग एजेंट, वो क्या कर रहा है? वो he also, that means he also is given his loyalties to the BJP. Sir, all I am saying is at the moment, in front of the Modi juggernaut, let me tell you this, let me make this point. Bharatiya Janata Party has been hurt. Mr. Modi himself, his pride has been wounded by the Lok Sabha results. वो जो 240 सीटें आई ना, मतलब बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई मोदी जी को. उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम जहां भी लड़ेंगे जीतेंगे, कुछ भी करना पड़े जीतिए. Which is why even now, Pradeep ji, you see in Mumbai, the BJP is on an overdrive for memberships and voters lists. आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, by the time BMC elections are announced in Mumbai, there will be 20 lakh extra voters यहां पर. और ये बाकी जितनी भी पार्टियां, सब लोग बोलेंगे ये गलत है, ये है, वो है, फ्रॉड है, ये है, वो है, वो है, सब बोलेंगे. But they are working to a plan. घर चलो अभियान, एक अभियान लेके लोगों को घर तक पहुंच रहे हैं. सर मेरे घर में भी पहुंच गए. मैं तो ये बोल रहा हूं आपको, मेरे घर में भी पहुंच गए. मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको. सर द बीजेपी वर्क्स हार्ड. बीजेपी के जो कार्डर हैं और आरएसएस के जो कार्डर हैं, सर आप तो आरएसएस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. सर वो हार्ड वर्क से नहीं डरते. लेट्स बी वेरी क्लियर. जितना मेहनत वो करते हैं, मैंने आज तक कभी किसी और को करते हुए देखा नहीं. And they're not bothered न्यूज़ में है नहीं है, बस नहीं, आम आदमी अपने. In fact, they avoid the news. Yes. Avoid all cameras, avoid all reporters completely. उनको आदेश आया कि आपको इस क्षेत्र में जाना है, सब लोग मिलके अपना खाना वाना लेके अपना डब्बा लेकर के बस में बैठ करके एकदम पहुंच जाते हैं सर. सीधी बात है. एंड सबसे बड़ी बात है जो अभी गोपाल तिवारी जी बोल रहे थे ना, अब कमर्शलाइजेशन हो गई है, लोगों को पैसा चाहिए. इफेक्टिवली व्हाट यू आर सेइंग वाज, even Congress workers don't work without money. You have to pay them. RSS workers work only without money. That's the difference. So how do you beat that? जब तक आपका खुद का कोई डेडिकेटेड कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, जो था सेवा दल. सर तारिक अनवर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेवा दल, और वही सेवा दल अग्रसर था. सेवा दल के नेतृत्व में जनता पार्टी, जो मोरारजी देसाई जिसके प्रधानमंत्री थे, दांतों तले लोहे के चने चबवा दिए थे इन लोगों ने. ये वही कौन लोग सर,
तारिक अनवर, अकबर अहमद, संजय गांधी, कमलनाथ. Every third day there used to be an agitation. Every third day the Congress was out on the street. मतलब नाक में दम करके रख दिया था. And सेवादल वर्कर्स आर टोटली एकदम जबरदस्त तरीके थे, से sir, but इंटीग्रिटी जबरदस्त, उनको कोई आज के जो फेवर्स है या एक्सेस मनी है, कोई न कोई जो मोह माया है, दुरुस्त बात. उससे दूर अलग है. इसीलिए सेवा दल को आपने साइडलाइन कर दिया कांग्रेस ने. आज सेवा दल अगर इनका काम कर रहा होता ना तो कांग्रेस को तो एटलीस्ट 10 या 15 सीटें मिल जाती. 10 सीटें अगर मान लीजिए कांग्रेस को मिलती तो आम आदमी पार्टी की 12 हो जाती. दैट्स इट. क्योंकि उनका वोट तो वही है ना. बीजेपी का तो वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को पड़ता नहीं है. बीजेपी का जो वोट है वो कांग्रेस को पड़ता नहीं है. इट इज द ओल्ड कांग्रेस वोट इन दिल्ली which has been taken over by the Aam Aadmi Party. This time they were just not able to cut it. That's it. और आप देखिए ना मार्जिन ऑफ विक्ट्री कितनी कम है. कहीं 625 है, कहीं कुछ है. केजरीवाल जी जरा 1010 या 1020 वोटों से हारे हैं, लेकिन बाकी हर जगह पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज वेरी वेरी स्मॉल. Which is the reason why the difference in vote share between the two parties, the BJP and the Aam Aadmi Party, is just about less than 2.5%. There it is about 45%, इनका कुछ 42.5% है. So they are neck and neck, actually speaking. और सब लोग जो ये बोल रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई. अरे भैया 22 सीटें उनके पास, 22. पिछली असेंबली में बीजेपी के पास सिर्फ 8 थी, उसके पहले बीजेपी के पास सिर्फ 3 थी. और कांग्रेस का तो खैर बल्ले बल्ले सर, 0 0 0 and 0. That's it. Fantastic. Right, that's all that we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. आप सब्सक्राइब जरूर करें जरा चैनल को प्लीज. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट जरूर भेजें. प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स. Whatever you want to write on, please do send it, and you can make it as colorful as possible. There is no problem at all. I'll read it right over here. I think we should start reading comments again, Pradeep ji. And that's it. Thank you very much for watching Nation Now. We'll of course be back tomorrow. As usual, with the truth and nothing but the truth, right here on Nation Now. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम.